Am I not audible, guys? Subhuji online. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जार जार किसी mic issue थे you can drop and rejoin again. ठीक है? All right. So you know that in DDL command DDL we have 5 commands, right? Create, alter, rename, truncate, and drop. Hala. So we have 5 commands. So create को use करके we can create database objects in the table है index है बहुत सारा constant है you can do I mean you can create lot of database objects. It's not about only tables. With a database we can create a okay. So create use करें we can create a constraint, we can create an index, tables, both are only create is used to create database objects. Hala. So now we will see how to create a table. I think you are familiar with this create table statement, right? It's very easy. How to create a table? You have to write create table, then the table name. Okay. So these are the columns. Let's say I have how many columns? 6 columns. And along with the column, you have to specify the data type. Okay. Create table name. Then you can start the bracket. This is how you close the bracket. Then I have 6 columns. So 6 column will have their data type. The E number column, right, will try to accept the numeric value. E name column, it will accept the text values. Okay. E address will accept the text values. E division will accept the text. Then salary will accept decimal values. That is the reason why we have taken money. Take us. Any questions? Clear, right? This is how you create a table in SQL. Okay. So you have to select the command and click on execute. Now commands completed successfully means table is created. So if table is created, how to check? Select star from table name is my employee. Right. So table is created. Now we have an empty structure. So data kichhi nahi because we have not inserted anything, right? So to insert data in a table, so how to write insert into table name values. Okay. So you have to specify all the columns value, right? So it came to specify how many columns we have. We have 6 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then first we provide e name, then e number, employee number, then name, then address, then division, then designation, whatever, and then the salary. Okay. So I'll write network engineer. Okay. So all the text values must be enclosed in single quotes. जेतोळे हमें value insert करूचे सब text values को in single quote रे रखे पड़ियो, otherwise it will throw you an error. Numeric value है गला, then decimal है गला. You don't have to keep it in single quotes. All that you should remember, all the text values and dates must be enclosed in or covered in single quotes. Yes. Okay. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. So this is how you insert. I'll select this and click on execute. One row affected. So go back to the select query. You can now see one record is inserted. Second row ko select kali, execute, one row affected. That means second record is inserted. So if you either you can execute a single line statement or you can select the entire insert command and click on execute. All the records will be inserted. Okay. So suppose in a basically what will happen here is, I mean, if I have 20 records, I'll get 20 rows, 1 rows affected, 1 rows affected. It will be repeated 20 times. But in a single insert statement, okay, अगर आपको सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट में मे बी 5 और 6 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है
So what you have to do is, suppose मुझे ना क्या करना है, एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट में मुझे लेट्स से 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है. ये सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट में 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है. कैसे इंसर्ट करोगे? ये हो गया मेरा एक रिकॉर्ड, राइट. गिव ए कॉमा, ओके, कॉमा, 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 लास्ट कॉमा दबाकर दरकार नहीं, वापस स्पेसिफाई. For your understanding, I'm changing the alignment. Okay. I'm pressing tab. Okay. So now this is a single insert statement, right? Yes or no? I'm trying to insert 5 records at once. I'm trying to insert 5 records. So after each record, I'm giving a comma. For the last record, it is not required. I'm selecting this, click on execute. 5 rows affected. That means 5 records inserted. Let me cross check. ऐसे गलत. 5 records inserted. Clear? Understood how to create a table, how to insert the data? Any Ye- questions, guys, online? Clear, sir. Okay. सर ये खाली पांचटा ही हमें रेकॉर्ड ये करि परिबा ना मोर देन 5 भी More करि than, more परिबा? than. I'm just giving you an example. Here I have mentioned only 5. You can do it for the entire records. ओके अब जितने अच्छी समझते हैं बेटे, you can do it for all. There is no limitation, right? ओके But सर. okay. So do you think somebody will insert these records manually? आपको लग रहा है कि कोई ऐसा records manually insert करता होगा real time में? नो कौन सर, करेगा? नॉट पॉसिबल एक्चुअली टाइम. नॉट पॉसिबल, राइट. सो बेसिकली होता क्या है, डेटा फ्लो होता है आपके एप्लीकेशन से. आपका जो यूआई से आप कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, उधर से ही डेटा फ्लो हो जाता है डीबी को. ऐसे ही आप कोई अमेजोन में कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो, जोमेटो में कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो, दैट ऑटोमेटिकली हिट्स योर डेटाबेस बिकॉज यू प्लेस एन ऑर्डर. देन दी आपका राइडर का डिटेल कैप्चर होता है, इंडिविजुअल यूजर का डिटेल्स कैप्चर होता है, ये सारे डिटेल्स कैप्चर होकर ऐसे ही जाता है डेटाबेस में. आपका फ्रंट एंड से ही जाता है, कोई मैनुअल ऐसे इंसर्ट नहीं करता है. अगर किसी का इतना इतना डेटा मेंशन करना रहेगा, देन ही विल हैव ए बल्क फाइल अपलोड. एक एक्सेल या सीएसवी फाइल में डेटा भरा हुआ रहेगा, उसको फिर एक कमांड के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू उसको फिर डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है. कोई मैन्युअली बैठ के ये इंसर्ट कमांड बेसिकली प्रोग्राम में यूज होता है टू इंसर्ट योर फ्रंट एंड डेटा टू द बैक एंड और डेटाबेस सर्वर. मैकेनिज्म ये है, लेकिन मतलब रियल टाइम में कोई मैन्युअली बैठ के नहीं करता ये काम सब. ठीक है, देन इसको भी कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. चलो, चलो हो गए. Okay. I have 19 records. So suppose I want to create, okay. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था. हाँ हाँ बोलिए. जो अभी हम लोग ने एक सिंगल स्टेटमेंट में 5 रिकॉर्ड इंसर्टेबल और 5 रिकॉर्ड अलग से जो इंसर्ट इनटू एक अलग अलग करके हैं, एंड हम लोग का एक सिंगल क्वेरी था जो अभी डेमो किए. सो उसमें ऑप्टिमाइज्ड सबसे कौन सा होगा, सिंगल क्वेरी और? Can you repeat it once again? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो एक सिंगल क्वेरी जो एग्जांपल दिया, 5 रिकॉर्ड एक सर्च किए, सो आई गेस वो ऑप्टिमाइज्ड होगा रेदर देन ये जो सिंगल वाइज हम लोग मल्टीपल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज कर रहे नहीं हैं. नहीं, ऑब्वियसली दिस इज दी. हाँ, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसको ही यूज किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे बल्क इंसर्ट रहेगा ऐसे ही जाएगा, जहाँ पे सिंगल इंसर्ट रहेगा ऐसे ही जाएगा.
डेफिनेटली दिस इज, क्योंकि आप डेटाबेस के ऊपर ये ज्यादा लोड नहीं देगा, ये ज्यादा लोड देगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स 10 बार आप इंसर्ट्स हाँ करके हाँ, और रो execute रो कर रहे इफेक्ट हो रहा। हो, रो अफेक्ट हो रहा है। ये सिंगल टाइम में एक ही बार में 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, या 50, 100, लाखों रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। राइट। ठीक है। हम्म। क्या है बताएगा कि अभी इंसर्ट हो जाएगा, कोई कोई लिमिटेशंस हमने लगाया नहीं है, इंसर्ट हो जाएगा, बट इन रियल टाइम इट विल थ्रो यू एन एरर, क्योंकि एक टेबल पे एक कंस्ट्रेंट करके टॉपिक है। कंस्ट्रेंट मतलब आपका डुप्लीकेट आईडी वगैरह नहीं, क्योंकि पेशेंट आईडी यूनिक रहेगा ना, सेम आईडी पे 2-3 पेशेंट नहीं रह सकते ना। तो इसीलिए योर एम्प्लॉय आईडी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। आपको एक अलग मिला होगा मुझे, हमें भले ही हम लोग 1 लाख पब्लिक काम कर रहे हैं, बट द एम्प्लॉय आईडी विल बी यूनिक फॉर ईच पर्सन, राइट। सो आगे जाके हम लोग एक कांस्टेंट करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें क्या, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज, एम्प्लॉय नंबर विल नॉट एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज और नल वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली सेम फोन नंबर में दो लोगों को रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ओटीपी वगैरह आएगा। ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉय नंबर विल नॉट डुप्लीकेट, और यू कैन नॉट इवन कीप इट एम्प्टी, एम्प्टी भी नहीं रख सकते। अभी हम लोग एम्प्टी रख पाएंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड विल नॉट, वी कैन नॉट कीप इट एज एम्प्टी। ओके। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तभी अपने को समझ में आएगा। ओके। सपोज यहाँ पे और एक तरीका है, सपोज आई वांट टू, मुझे क्या करना है, मेरे पास अभी एम्प्लॉय नंबर का इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय नेम का इंफॉर्मेशन है, और उसका सैलरी के बारे में पता है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये तीनों वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है। अभी सो आई डोंट हैव, लेट्स फॉर एग्जांपल, अभी ये कंपनी में ज्वाइन किया है, ये कौन सा डिवीजन में जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है कि इसका नाम, मतलब इसका आईडी, ओके, इसका आईडी, देन नेम, देन लोकेशन, सैलरी पता है। आई डोंट नो अबाउट हिज डिवीजन एंड डेजिग्नेशन। ठीक है। तो मुझे ये 4 कॉलम के लिए वैल्यू पास करना है, बट ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सारे कॉलम को वैल्यू सप्लाई करता है, राइट। तो ये और एक चीज आप देखो, जिस सीक्वेंस में आपका टेबल क्रिएट हुआ होगा, सेम कॉलम सीक्वेंस में हमको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे पहले ई नंबर है, ई नंबर प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद नेम है, उसके बाद एड्रेस है, डिवीजन, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। आपने अगर कुछ सीक्वेंस गड़बड़ किया, या 5, देखो यहाँ पे मैंने 4 कॉल, मतलब 4 वैल्यू पास कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये आपको एरर थ्रो करेगा। कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डजंट मैच द टेबल डेफिनेशन, मतलब आपने टेबल जो क्रिएट किया है विद 6 कॉलम्स, बट यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ओनली 4 कॉलम्स, तो इसीलिए मैच ही नहीं हो रहा है। जो आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, टेबल स्ट्रक्चर है विद 7 कॉलम्स, राइट, 6 कॉलम्स, बट आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो 4 कॉलम के लिए, तो इसीलिए इट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड थ्रोइंग यू एन एरर। ठीक है। मैच नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिवीजन और डेजिग्नेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है, आई हैव ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, चाइल्ड से 1021, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सो व्हाट आई कैन डू इज, सिंस आई हैव ओनली वैल्यू फॉर दिस 4 कॉलम्स, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक ब्रैकेट में कौन से कॉलम को मैं वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ। ई नंबर पता है मुझे, कॉमा दे दो, नेम पता है, ओके, देन एड्रेस पता है, इस साल पता है। तो मैंने यहाँ पे ना फिक्स कर दिया कि ये 4 कॉलम को मैं वैल्यू पास करूंगा। सो ई नंबर, ई नेम, ई एड्रेस, ई सैलरी। ठीक है। तो अभी आप सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, 1 रो अफेक्टेड, इसमें आया, इसमें आया, ये तीनों कॉलम में वैल्यू आया, यहाँ पे आया, और ये दोनों में आ रहा है नल। ओके। सो नल मीन्स एम्प्टी और मिसिंग और अननोन वैल्यू। ऑब्वियसली null means missing, empty or unknown value. Okay, that means
when you don't provide any value, SQL replaces. Okay. When you don't provide any value for a particular column, then SQL automatically replaces or places a null value. So null means it is, we know that some cases we write not applicable. Okay, it is similar to that, not applicable. It's not a text value, it's not a numeric value, it is not even a space. Okay, it is called empty value, missing value, unknown value. Okay, so okay, it's neither zero or not a space. Space भी no, zero भी नहीं. You can't compare it with anything. Compare it with anything. Not even with. We can't compare it with any value, not even with null. Null को null संग भी you cannot compare. You cannot compare it with space, zero, any किसी भी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. null के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते. I'll show you that. Okay. So let, okay, null plus 10. If I'm adding null with 10, I'll get null. Okay. If I'm doing addition, so suppose you know where command, right? Where Yes, sir. e designation equals to null, right? Select star from money employee where e designation equals to null. Ideally, it should show me the last record, right? Yes or no? It is not showing me anything. कौन लिख जी? मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं. देखो, चलो, ये यहां तक तो वैसे भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला. ये नल तो नहीं है ये सारे सब. दीज आर नॉट नल्स, राइट? जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? ई डेजिग्नेशन रीड कर रहा है. ई डेजिग्नेशन इस वैल्यू को रीड करेगा, दैट इज नथिंग बट नल. ये सुनो, तो आप क्या करो, जनरल क्या होता है, मैं अगर लिख रहा हूं ई डेजिग्नेशन इक्वल्स टू, ओके, डेटा साइंटिस्ट, ये कैसे कंपेयर करेगा? ये रो को जाएगा, चलो डेटा मैनेजमेंट है इस रो में, चलो डेटा मैनेजमेंट इक्वल्स टू डेटा साइंटिस्ट, फॉल्स. इस रो को जाएगा डेटा साइंटिस्ट इक्वल्स टू डेटा साइंटिस्ट, ट्रू. ये रिकॉर्ड दिख जाएगा, ये भी वैसे ट्रू दिख जाएगा, और ये नल है, दैट इज ओके. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई डेजिग्नेशन इक्वल्स टू नल. सो ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाके ई डेजिग्नेशन जाके रीड कर रहा है, नल वैल्यू है. बट आप कंपेयर करो नल इक्वल्स टू नल. मैं अब यहाँ पे क्या लिखा, यू कैनॉट इवन कंपेयर इट विथ इटसेल्फ. नल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट, आपको नहीं दिखा रहा है ये. ठीक है, तो इसीलिए एक स्पेशल ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं ईज. आपको अगर नल वैल्यू को चेक करना है, यू मस्ट यूज ईज ऑपरेटर. ई डेजिग्नेशन इज नल.
नल को एक्सक्लूड करना है, नल को छोड़ के और सारे वैल्यूज आ जाए, नल नहीं आया। ओके, एक है इज नल, एक है इज नल। Is it's a special type of operator which is used to work with null values. Clear? Okay. So everyone understood how to create a table, insert the data, what is a null value? Okay. So Sir. okay, I want to create a duplicate or backup table. Okay, I have a table my employee. So that is my original table. I got a requirement जहाँ पे मुझे कुछ टेबल में चेंजेस करना है, बट मैं ओरिजिनल टेबल में चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ। ओरिजिनल टेबल में अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर मेरा डेटा गया, राइट। सो मुझे एक बैकअप टेबल, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक रफ पेपर होता है उसमें थोड़ा ट्राई करते हैं पेन चल रहा है कि नहीं, उसके बाद ओरिजिनल पेपर में जाके लिखते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। सो सिमिलर टू दैट, ओके, यू हैव अ डेटा, यू हैव अ टेबल वेयर वी हैव 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। मैंने अगर अपडेट डिलीट कुछ गड़बड़ कर दिया, पूरा डेटा गया मेरे पास, वो ओरिजिनल टेबल से डेटा गया। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं इसके बदले और एक डुप्लीकेट टेबल बनाऊंगा, उसमें जो भी मुझे आरएनडी करना रहेगा, जो भी रिसर्च करना रहेगा, कमांड्स लिखना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा, उसमें मैं पहले अप्लाई करूंगा, देन आई गो टू द ओरिजिनल टेबल, देन मेक दोस चेंजेस। तो इसीलिए मुझे एक बैकअप टेबल चाहिए, सेम टू सेम एक रेप्लिका जैसा एक टेबल चाहिए। सो हाउ टू क्रिएट दैट, सिलेक्ट स्टार इनटू, ओके, सिलेक्ट स्टार इनटू ईएमपी, कुछ भी एक नाम दे दो, ईएमपी मैंने लिख दिया, बैकअप, एनी नेम यू कैन गिव, ईएमपी अंडरस्कोर बीके लिखो, बैकअप लिखो, एबीसी लिखो, ओके, फ्रॉम माय एम्प्लॉय। बहुत ही इजी कमांड है, सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब आपको पता है ऑल कॉलम्स, राइट। सिलेक्ट स्टार इनटू ईएमपी बीके टेबल, दैट मींस पुट एवरीथिंग इनटू ईएमपी बैकअप टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल से सारे डेटा लेके एम्प्लॉय बैकअप टेबल में डाल दो। दैट मींस इन दिस स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन इज, दिस स्टेटमेंट फर्स्ट will create a new table, that is emp underscore bk, then copy all the data from which table, my employee table. Clear? So ये जो command रो first काम होची to create a new table, then copy all the data that is present in my employee table. Even when it will create the table, it will be copying the structure from the my employee table. Same my employee table row, it will create a new table, then it will try to copy all the records that is present inside my employee table and will copy everything into employee backup table. Basically duplicate table we are creating a, you may get questions like how to create a duplicate table, how to create a clone table, or how to create a backup table. It's one and same. ठीक है। So देखो, so if you see here, select star from emp underscore bk, okay, select star from emp underscore bk. Table is not there, but if I run this, it will create a new table and copy all the data. देखो एक table नथिला, now if you just execute, now this is the, it has created and copied all the records, put it a record को copy कर देना। So clear everyone? This is how you create a duplicate table, clone table, backup table. एक्चुअली क्रिस, एक अपना एक स्टूडेंट, उसने एसक्यूएल का एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसको पूछा कि क्लोन टेबल क्या है, तो हमने बताया था डुप्लीकेट टेबल, बैकअप टेबल। तो उसको क्लोन टेबल का उसको लगा कि कुछ नया पूछ रहा है, बता नहीं पाई वो। ठीक है, सो दैट इज रीजन व्हाई आई मेंशनड क्लोन कीवर्ड। बोले सर क्लोन कुछ तो हम आपने पढ़ा है नहीं, क्लोन टेबल मतलब क्या है? बोला क्लोन टेबल मतलब वही बैकअप टेबल ही पूछा आपको, खाली उसने वो टर्म को चेंज किया।
Okay. Then this is एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट I mean you have to create a table structure without any data, same to same. ठीक है, माई एम्प्लॉय सपोज यू हैव, आपके पास माई एम्प्लॉय टेबल है। मैं क्या चाह रहा हूँ, आप माई एम्प्लॉय टेबल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाओ विदाउट कॉपिंग एनी डेटा। डेटा मुझे नहीं चाहिए, खाली टेबल स्ट्रक्चर ही चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज, ये कमांड हम लोग दोबारा एग्जीक्यूट कर मतलब कर सकते हैं कि नहीं? कैन बी एग्जीक्यूट दिस कमांड? टेबल नेम चेंज करके कर सकते यस, टेबल नेम इज ऑलरेडी देयर, टेबल क्रिएट हो गया। अभी अभी आप लोग ट्राई करोगे तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, राइट? सो आप एक नया टेबल बना सकते हो। से मैंने चेंज कर दिया बैकअप ये, ओके, अभी मैं बना सकता। बट दिस टाइम I want to create an empty structure without any data. This time I don't want to copy any data, so I will write where वन इक्वल्स टू, देखो मैं अब ऐसे लिखूंगा कि अपना जो है एक फॉल्स कंडीशन लिख दूंगा, ठीक है? ई एड्रेस इक्वल्स टू यूएसए, ठीक है? आप अगर देखोगे यूएसए करके कुछ है क्या? यूएसए करके कुछ एड्रेस में है नहीं, तो ये टेबल तो कर देगा, बट जब डेटा कॉपी करने की कोशिश करेगा विद दिस कंडीशन, ये आपको मिलेगा नहीं, तो डेटा कुछ भी कॉपी नहीं होगा। ओनली द एम्प्टी टेबल स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड। सी, ये हो गया, देखो जीरो रोज अफेक्टेड, बट टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट हो गया लेकिन डेटा कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया विच इज फॉल्स। हर एक रो पे गया डेटा कॉपी करने के लिए, देखा ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा, डेटा उधर से मिला। अगर हम लोग ये नहीं लिखेंगे तो डेटा कॉपी हो जाता है, ठीक है? और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी डेटा कॉपी नहीं होगा। वन इक्वल्स टू जीरो इज ऑलवेज फॉल्स, राइट? वन इक्वल्स टू वन लिखोगे तो डेटा कॉपी होगा, वन इक्वल्स टू जीरो लिखोगे तो डेटा कॉपी। ये शॉर्टकट है, ठीक है? देखो अगर मैं एक ये करता हूँ, वन इक्वल्स टू वन करूंगा, एग्जीक्यूट, डेटा कॉपी हो गया, देखो डेटा कॉपी हो गया। बट इसको अगर मैं और एक टेबल बनाता हूँ, वन इक्वल्स टू जीरो कर रहा हूँ, ठीक है? सो वन इक्वल्स टू जीरो मीन्स इट्स ऑलवेज फॉल्स, इट विल नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो। आपको अगर इतना सब नहीं लिखना है, सिंपल वन इक्वल्स टू वन मीन्स ट्रू, इट विल ट्राई टू कॉपी, बिकॉज आपने ट्रू बोल दिया मतलब सारे डेटा कॉपी हो जाएगा, फॉल्स मतलब कुछ डेटा कॉपी नहीं।
कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। ऑलरेडी एक टेबल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में खाली डेटा कॉपी करना है। दिस टाइम द टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वी हैव टू कॉपी डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, कैसे करेंगे? कौन से टेबल में डेटा नहीं था? एम्प्लॉय, इसमें डेटा नहीं था, राइट? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू बैकअप एम्प्लॉय टू। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो मतलब ये जो बैकअप एम्प्लॉय टू में डेटा कुछ नहीं है, राइट? मुझे क्या करना है, डेटा इधर से पूरा जो 19 या 20 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू दिस टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप, मतलब यहाँ से डेटा निकालो और यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट कर दो। बट यू हैव टू मेक श्योर ये कॉलम का जो सीक्वेंस है ना, ये सब कुछ सेम होना चाहिए, राइट? एम्प्लॉय, क्योंकि डेटा इधर से जाके इधर इंसर्ट होगा, राइट? ठीक है, तो सीक्वेंस सेम होगा। सीक्वेंस अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो डेटा कॉपी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 5 कॉलम है या 6 कॉलम है, यहाँ पे 6 कॉलम है। सो आप एक घर, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपके पास एक 4 BHK है, ठीक है? एक 4 BHK है। आप अगर सामान शिफ्ट कर रहे हो, सो 1 BHK में आ पाएगा क्या 4 BHK का सामान? तो ऑब्वियसली अगर 4 BHK से सामान निकाल रहे हो तो डेस्टिनेशन पे भी 4 BHK रहना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, अगर यहाँ पे 6 कॉलम है, डेटा आप यहाँ से मतलब ये टेबल से इधर कॉपी कर रहे हो, सो यू शुड हैव सिमिलर कॉलम्स, कॉलम सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। अगर कॉलम आपका आप पहले मतलब ई साल लिख रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो तो डेटा इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर यहाँ पे भी कंडीशन वगैरह दे सकते हो, कैसे? मतलब मुझे 3 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फिर उसी हिसाब से कॉलम मतलब लिखूंगा, वेर ये मतलब यहाँ पे भी इंसर्ट लिखूंगा, ये कॉलम में इंसर्ट करो और ये यहाँ से वैल्यू लेके इंसर्ट करो। दैट वेयर कंडीशन ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, सो ये पहले करके देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय बैकअप टेबल में तक कुछ नहीं था, राइट? यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें कुछ नहीं था, अभी डेटा आ गया। ठीक है, ट्रंकेट कमांड का क्या क्या यूज है? डिलीट द टेबल्स, स्ट्रक्चर पूरा। ट्रंकेट कमांड विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स एट वंस। ओके, ट्रंकेट कमांड विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स एट वंस। अभी गया पूरा डेटा। ओके, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स एट वंस। नहीं, डेटा उड़ाएगा, टेबल रहेगा, टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। जितने सारे चले से 500 रिकॉर्ड है, इफ यू राइट ट्रंकेट टेबल दिस, सो इट विल रिमूव 500 रिकॉर्ड्स। अगर आपको पूरा टेबल उड़ाना है, देन यू हैव टू राइट ड्रॉप टेबल। ओके, ये
हो गया। ड्रॉप के बाद अब देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट लिखेगा, है नहीं अभी। ड्रॉप क्या करता है, परमानेंटली रिमूव द टेबल्स। परमानेंटली रिमूव द टेबल, टेबल और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। खाली टेबल नहीं उड़ाता है, बहुत मतलब इंडेक्स हो गया, आगे जगह पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट हो गया, बहुत कुछ रिमूव कर देगा। व्यू डेटाबेस में टेबल जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल इज वन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। उसमें व्यू करते हैं इंडेक्स करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो ड्रॉप इज यूज टू रिमूव एवरीथिंग। ओके, सो सब समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देन हम लोग अभी ऑल्टर के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो ऑल्टर, ऑल्टर क्या करता है, याद है कुछ? अच्छा सर, वो जो लोग टेबल क्रिएट कर रहे थे, एम्प्टी टेबल, हाँ हाँ, वो कंडीशन देखिए, लॉजिक बैकएंड में क्या हो रहा, मैं थोड़ा जान, जब एक मिनट। फॉल्स हो रहा तो एम्प्टी दे रहा है, एंड ट्रू हो रहा तो जो रिजल्ट चाहिए हम लोग को वो आ बता। सो देखो, ये जो वेयर कंडीशन है, ये कैसे काम करता है बेसिकली? वो पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ट्रू या फॉल्स होने से ही दिखाता है, राइट? ईच रो को जाएगा, वो कंडीशन ट्रू होगा तभी वो डेटा डिस्प्ले होता है, राइट? यस और नो? रहा। ओके, आप यस लिखते हो कि एड्रेस इक्वल्स टू यूएसए, सो ईच रो को जाके चेक करेगा। इसका देखो, सिलेक्ट स्टार इनटू विशाल फ्रॉम एम्प्लॉय, इतने, ये जो कमांड है इसका काम ये है कि फर्स्ट यू क्रिएट दिस टेबल, विशाल टेबल पहले क्रिएट करो, उसके बाद माई एम्प्लॉय में जो डेटा है सब लेके कॉपी कर दो। और विशाल टेबल का जो स्ट्रक्चर है, यू हैव टू कॉपी दैट स्ट्रक्चर फ्रॉम माई एम्प्लॉय हम्म। एंड कॉपी द डेटा। फर्स्ट यू कॉपी द स्ट्रक्चर, ओके, देन कॉपी द डेटा। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया कि अच्छा, यूएसए में अगर कुछ कुछ अगर एड्रेस यूएस मेंशन है एड्रेस में, तो यूएस वाला रिकॉर्ड को कॉपी करो, ठीक है? ये ईच रो को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर, कॉपी। हाँ हाँ, बोलो। कंटिन्यू, कोई और बोल। हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड को जाएगा, चेक करेगा एड्रेस यूएस है क्या, अगर होगा तो फिर वो पर्टिकुलर एड्रेस को विशाल टेबल में इंसर्ट कर देगा, ठीक है? सेकंड रिकॉर्ड को जाएगा, नहीं है तो नहीं करेगा। बेसिकली ऑन व्हाट बेसिस इट इज ट्राइंग टू कॉपी? बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स, राइट? ये रिटर्न करता होगा ट्रू, तभी इंसर्ट होता होगा। फॉल्स जब करेगा वो रिकॉर्ड नहीं जाएगा, सिंपल, राइट?
तो पहला स्टेटमेंट में जो एड्रेस जैसे यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग सपोज पुणे दे दिए वहां पे, हम्म तो उसमें कौन पुणे सा वाला रिकॉर्ड रिकॉर्ड, जो पुणे बस जो पुणे जो वाला जो रिकॉर्ड जाएगा? जो पुणे से है उनका रिकॉर्ड कॉपी हो जाएगा, राइट। ओके ओके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये ना लिख के डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 = 1। That means either it will return true or false. So 1 = 1 means true. That हाँ means हाँ हर एक रिकॉर्ड अंडरस्टूड। को जाएगा, ट्रू होगा तभी वो रिकॉर्ड कॉपी होगा, ट्रू होगा कॉपी होगा। जहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स होने का चांस ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल रिकॉर्ड्स इट विल बी फॉल्स बिकॉज 1 = 0। राइट, क्लियर। गॉट इट। ऑल्टर क्या करता है, इट इज यूज टू मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर। You can add new columns, you can remove existing columns, you can modify the columns data type also. For example, अभी ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें ना मुझे 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करना है। मुझे एक रिक्वायरमेंट आया कि इनका पैन नंबर और आधार नंबर कैप्चर करना है। सो आई हैव टू ऐड 2 more columns, right? So in that case what you have to do is alter, okay, table, okay। सो देखो, एसएसएमएस में इट इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आप फैब्रिक यूज कर रहे हो देन इट इज केस सेंसिटिव। एसएसएमएस में भी हम लोग इसको केस सेंसिटिव कर सकते हैं। एक उसका एक कमांड है, वो स्क्रिप्ट रन कर देंगे तो इट विल आल्सो बिहेव एज फैब्रिक, फैब्रिक जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे अभी केस सेंसिटिव नहीं है तो इसीलिए मैं मिक्स करके लिख रहा हूँ, कहीं कहाँ मतलब कहीं कहीं पे मैं स्मॉल लेटर्स, कहीं कहीं पे कैप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल माई एम्प्लॉय ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल माई एम्प्लॉय, ओके। राइट, कैपिटल कर देता हूँ, चलो। स्मॉल कैप्स दोनों में काम करेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये नंबर वाला कलम बताया था। कैप में ऐसी दोनों है। हाँ, इसलिए इसीलिए बैर कर दिया, बैर कर सब कुछ एक्सेप्ट करता है। टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट करेगा, अल्फाबेट नंबर स्पेशल कैरेक्टर वो भी एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी आप दे दो। इसलिए मैंने वैर कैर लिया। ओके, सो वैर कैर में मतलब पैन नंबर का मुझे पता है, द साइज इज फिक्स्ड, इट्स 10। तो मैं वैर कैर भी ले सकता हूँ, कैर भी ले सकता हूँ, कैर इज ऑल्सो फिक्स्ड डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करो, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कंप्लीट हो गया पैन नंबर, ऑब्वियसली नल आएगा क्योंकि फॉर फॉर दिस रिकॉर्ड्स आई हैव नॉट, आई डोंट हैव एनी पैन नंबर्स। मुझे फिर बाद में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आधार नंबर ऐसा कैप्चर करना है, सेम कॉपी पेस्ट करो। आधार नंबर 12 होता है, ठीक है। राइट, 4 4 4 5। हाँ, इंटीजर, सॉरी पर पे रहता हूँ, पर पे सो दिस इज हाउ यू क्रिएट, ओके। तो आपको अगर ये एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा, तो हाउ डू यू, देखो नाउ इट इज क्रिएटेड, सो आई वांट टू रिमूव, ओके। ये पूरा एक सिंगल कमांड है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू रिमूव अ कॉलम।
ठीक है, गया 2 कॉलम रिमूव हो गए। राइट, मुझे अगर देखो, मुझे अगर मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करना है, ठीक है, एक सिंगल ऑल्टर में मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करना है, ड्रॉप करना है, सेम कर दो। हो गया ड्रॉप। टेन टेन अगर नहीं लिखोगे तो एक ही कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लेगा। तो आप अगर उसको क्रिएट करोगे, पैन नंबर 5 कैरेक्टर का दोगे, 10 कैरेक्टर का दोगे, तो फर्स्ट कैरेक्टर लेगा। और बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 1 कैरेक्टर इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको जरूरत पड़ा, ये अभी सपोज मैं 15 दिन इस पे नहीं काम करूंगा, नहीं लिखूंगा, तो मैं भी भूल जाऊंगा, चैट जीपीटी गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंटैक्स के ऊपर इतना सीरियस मत लो, सिंटैक्स ये मिल जाता है गूगल में। ठीक है, सो कोई कोड नहीं लिखता आज के टाइम पे, सब चैट जीपीटी गूगल से ही कॉपी पेस्ट करते हैं। सो डोंट वरी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो देखो, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जब मैं ऐड कर रहा हूँ कॉलम, देन आई एम राइटिंग ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम का नाम डेटा टाइप। बट मैं रिमूव जब कर रहा हूँ, आई एम स्पेसिफाइंग ड्रॉप कॉलम कीवर्ड स्पेसिफाई कर रहा हूँ। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे हम लोग कॉलम क्यों नहीं स्पेसिफिक लिख, ऐसा कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं। इट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मैंने नहीं बनाया एसक्यूएल सर्वर को। ठीक है, और कोई कोई बोलते हैं सर हम लोग ना पहले टेबल लिखेंगे उसके बाद ऑल्टर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा। ये सब बेकार बेकार का सवाल है। मैं उनको सिंपल एक बहुत ऐसे पूछते हैं कि सर मैं क्रिएट टेबल लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल ईएमपी लिख रहा हूँ, मैं क्यों नहीं लिख सकता ईएमपी टेबल क्रिएट। ऐसे भी लोग पूछते हैं कि सर ये क्यों नहीं हम लोग लिख सकते। मैं ऐसे उनका मेरा आंसर ये है, कैन आई राइट लाइक दिस। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंग्लिश है, ग्रामर है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। सो दिस इज ए लैंग्वेज, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं अगर खुद का रूल मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा तो ऑब्वियस ऑब्वियस बात है कि ये मुझे थ्रो करेगा एरर। सिंपल, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नहीं पता, गूगल करो, याद नहीं है गूगल करो, कॉपी पेस्ट करो, सिंपल है। हम्म हम्म। किसमें, एसएसएमएस में? एसएसएम, हाँ हाँ हाँ। हम्म इसमें हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं दिखा दूंगा सब कुछ, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये सबको समझ में आया, ऑल्टर वाला पार्ट? ठीक है, ये खाली याद रखने के लिए है क्या होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी। मैं जैसे बोल रहा हूँ 90% इसका कोई 90 क्या 99% इसका कुछ रियल टाइम में यूज नहीं है, बट इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। डू यू नो हाउ टू ऑल्टर ए टेबल, कैन यू क्रिएट ए कॉपी क्लोन टेबल, कैन यू क्रिएट अ टेबल स्ट्रक्चर विथ नो डाटा, ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस। सो यू शुड बी प्रिपेयर। एक बार हैंड्स ऑन करो, उसके बाद मतलब जब इंटरव्यू होगा एक बार जस्ट गो थ्रू करो इसको, फिर इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इससे बेटर है आप अगर एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट जॉइंस हो गया, एडवांस क्वेरीज हो गया, उस पे उसके ऊपर काम करोगे इसको, मतलब फॉर द टाइम बिंग यू कैन पार्क इट। जब कुछ आगे रहेगा, इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तब जाके फिर इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, डीडीएल में हमने क्या क्या सीखा, क्रिएट सीख लिया, ड्रॉप, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है, ऑल्टर। ठीक है, और रीनेम भी है। रीनेम इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आई ट्राई टू कवर। ये सबको पता है, एसपी रीनेम ऐसे करते हैं, एसपी अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, माई एम्प्लॉय
ठीक है। ठीक है, जो माई एम्प्लॉय, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम्प्लॉय था। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है राइट, क्योंकि मैंने क्या किया, रीनेम कर दिया माई एम्प्लॉय जो था, इसको योर एम्प्लॉय कर दिया। डन। नाउ योर ओल्ड नेम हैज बीन चेंज टू दिस। फिर योर एम्प्लॉय को माई एम्प्लॉय करना है, कर दो फिर। ये कहीं पे यूज नहीं होता है इसका, तो जीरो में बताऊंगा, क्योंकि कोई जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके रीनेम करेगा, चलिए बस टेबल का नेम को भी रिनेम करता है। नेम को, ये कॉलम को भी रीनेम कर देगा। ई डेजिग्नेशन, डीएसजी को डेजिग्नेशन पूरा करना है। ठीक है, चलो ये करके देखते हैं। सो इसका मतलब कोई मुझे समझा सकता है? ये जो आप देख रहे हो, कॉशन मतलब वार्निंग। ठीक है, आपका सब जगह पे लिख रहा ऐसा आ रहा था कि कमांड्स एग्जीक्यूटेड, कमांड्स एग्जीक्यूटेड, बट यहाँ पे आ रहा है चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट्स एंड स्टोर प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या है, बताओ? चेंजेस हुआ तो बाकी अगर ये टेबल और किसी वहाँ पर जो काम कर रहा होगा वहाँ पर भी चेंजेस। आप एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, उसमें एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर्म एक रहता है जहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरते हो, पैन आधार सब कुछ अपलोड करते हो। ठीक है, आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ओके, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट करते हो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपने भरा। ठीक है, आपने जब सबमिट किया तो ये इसका इंफॉर्मेशन एक टेबल में ही रहेगा ना, एम्प्लॉय टेबल करके, राइट? सो ये डेटा सब कैप्चर होगा, कैप्चर होके इंटरनली इंसर्ट क्वेरी फायर होगा, राइट? इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, देन ये डेटा को पास करके यहाँ पे हम लोग भरेंगे डेटा, राइट? इंटरनल मैकेनिज्म यही होता रहेगा ना, डेटा को जो फ्रंट एंड या एप्लीकेशन से कैप्चर करके इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट करना है, टेबल में इंसर्ट करना है। तो आपका यहाँ पे जो टेबल था, ईएमपी था, राइट? आपने रिनेम कर दिया माई एम्प्लॉय। तो जब ये जो कमांड और ये जो प्रोग्राम इसको यूज करके ट्राई कर रहा है इंसर्ट करने के लिए, अभी एम्प्लॉय उसको नहीं मिलेगा ना, माई आपने रीनेम बैकएंड में चेंज कर दिया माई एम्प्लॉय। तो इसीलिए ये आ रहा है कि चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट्स और स्टोर प्रोसीजर जो इसको फॉलो कर रहे हैं। सपोज मेरे पास 10 प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं ईएमपी टेबल को, मैं अगर इंटरनली एज अ डेटाबेस यूजर में चेंज कर रहा हूँ और मैं बाकी प्रोग्राम को अपडेट नहीं दे रहा हूँ या वहां पे जाके अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा स्क्रिप्ट फेल होगा। यहाँ पे आप अगर सबमिट करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा, सर्वर एरर की डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है बिकॉज तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नाम ही चेंज हो गया है। सो इट इज, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ठीक है, बट दिस इज ए मेजर चेंज। ये मजाक नहीं कर सकते हो आप ऑफिस में। ठीक है, तो ये करोगे तो एप्लीकेशन पूरा फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। है से इसलिए ये वार्निंग है, इट हैज चेंज्ड, रीनेम कर दिया, लेकिन आपको एक वार्निंग दिया कि अगर इन केस देयर आर सम प्रोग्राम्स विच आर यूजिंग दिस टेबल नेम टू रेफर, तो आपका वहां पे नहीं चलेगा, उसको पहले जाके फिक्स करो। ठीक है, तो रियल टाइम में अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आता है तो सारे जो मतलब सारे जो टीम्स इन्वॉल्व हैं, जो सब ये इसके ऊपर काम करते हैं, सबको प्रॉपर रिक्वायरमेंट जाता है कि तुम भी, तुम्हारा ये फिक्सेस हम लोग कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू यू मेक दो चेंजेस इन योर प्रोग्राम, तुम्हारा टेबल का नाम भी तुम चेंज कर दो अभी से, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो।
और यहाँ पे हम लोग सपोज सैलरी चेंज करना है, ये हो गया तो नॉर्मल माई एम्प्लॉय योर एम्प्लॉय वॉट एवर। बट अगर मुझे सैलरी कॉलम का नेम चेंज करना है, देखो माई एम्प्लॉय डॉट डॉट ई अंडरस्कोर सैल, ठीक है। कॉलम का नाम ऐसे ही चेंज करते हैं, माई टेबल का नाम डॉट जो ओल्ड कॉलम नेम, ये न्यू कॉलम का पूरा नाम है। सो टेबल्स नेम डॉट ई सैलरी, ओके दिस इज न्यू कॉलम्स। एग्जीक्यूट करो, ये सेम कॉलम नाम भी चेंज होगा तो तभी भी इम्पैक्ट हो सकता है। चेंज हो गया कॉलम का नाम, ई सैल था, एम्प्लॉय सैलरी हो गया, right? ठीक है, समझ में आया? सैलरी इसी का सैलरी चेंज कर। अपडेट डीएमएल कमांड नहीं पढ़ा है, तब सीखेंगे। डीएमएल हमने अभी तक टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, टेबल के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। बट डेटा को कैसे चेंज करना है, अपडेट करके कमांड। अपडेट डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड, और अपडेट कोई स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड। वी आर जनरली वर्किंग विद द स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर के साथ ही काम करें। डेटा नेक्स्ट सेशन में वो लोग हम लोग देखेंगे, डीएमएल देखेंगे, ठीक है। ये एक हो गया, देन दूसरा और क्या है, और क्या है। हाँ, मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक बहुत पुराना, मतलब मैं पुराना सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आपका जो एसएसएमएस का ओल्ड वर्जन में यूज कर रहा हूँ। देयर हाउ टू डू, मैं बताता हूँ। नया जो है एसएसएमएस आप लोग जो यूज कर रहे हो, तो उसका शायद नेविगेशन मैंने कभी किया नहीं है, बट ओल्ड का मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। 54। सर सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। सर अभी अगर हम लोग अगर क्वेरी एक लिख रहे हैं तो उसमें अगर एक टेबल में किसी भी एक जगह पे कुछ मतलब गलती हो गया और हम उसको पुश कर दिए, तो उसमें कुछ ऐसा मतलब अनडू रीडू का कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है सर इसमें? डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कुछ अगर गलती से चला गया तो डिलीट कर सकते हो, कुछ अगर डिलीट हो गया तो उसमें एक टीसीएल करके है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। वो टीसीएल के थ्रू उसको रोल बैक कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो जो लेट्स से आपने 10 रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिया, उसको उसको अगर आपको अंडू करना है, वो टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज करके, वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस, ओके। बट उसका कोई ज्यादा कुछ यूज नहीं है। बट अगर अगर अभी क्या हो रहा है ना, आप सपोज ये रिकॉर्ड को मैंने एक बार इंसर्ट इनटू करके 100 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिया, फिर दोबारा अगर इसको सिलेक्ट करके रन कर दूंगा, फिर से 100 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। तो आपको लगेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड चला गया, मैं कैसे करूंगा? उसको क्या करो, ट्रंकेट कर दो, टेबल क्लीन हो गया, फिर से फ्रेशली इंसर्ट कर दो अभी के लिए, ओके। बट आगे जाके आप अंडू कर सकते हो बाय यूजिंग रोल बैक कमांड। जो गलती से कुछ हो गया, मतलब डिलीट हो गया, उसको अंडू करने से फिर वो रिकॉर्ड्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, अगर टीसीएल सिचुएशन हाँ हाँ। सिचुएशन अगर सर कुछ ऐसा है कि हम जैसे कि एक क्लोन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़े, तो अगर हम्म। ओरिजिनल वाले में अगर कुछ इशू हो गया है और हमें वो क्लोन करने के बाद पता चला, तो क्या हम मतलब दोनों टेबल को एक ही साथ मतलब? नहीं नहीं नहीं, फिर से रिपीट करो। और टेबल सर मैं क्लोन पूछ रहा करते था वक्त क्या पता चलता है?
सर पता चलता है कि हमारा जो इशू है वो हम लोग का मेन टेबल से ही मतलब है, और हम लोगों ने उसको क्लोन करके क्लोन में भी वही सेम इशू कर दिया है। हम्म। तो उसको फिक्स करने के लिए सर हम लोग मतलब मैन्युअली एक एक टेबल करके करें, या फिर दोनों को साथ में ही कर सकते हैं? नहीं, दोनों को साथ में, क्योंकि दो अलग अलग टेबल बन जाता है ना, कोई लिंक नहीं है फिर। ठीक है, ये एक फ्रेश न्यू टेबल है, वो सर एक है। तो आप उसको ओरिजिनल टेबल में भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अगर डेटा फिक्स है तो डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो, कोई अपडेट कमांड चला दो। अगर एक्चुअली कुछ गलती हो गया है, अगर आपके पास रोल बैक का कुछ स्कोप ही नहीं है, देन आपको डीबीए टीम को फिर रीच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ मेजर मिस्टेक कर दिया, टेबल को छुड़ा दिया सर या डेटा को छुड़ा दिया, और आप रोल बैक वगैरह पहले से देखो, रोल बैक भी करने के लिए भी उसका एक प्रोसीजर है। एक बिगिन लिखते हैं, एंड लिखते हैं। अगर आपका टेबल वो बिगिन एंड ब्लॉक में रहेगा तभी हो पाएगा। अगर आपने ऐसे ही, मैं अभी अभी कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दूंगा तो फिर रिकवर नहीं कर पाऊंगा मैं फिर, क्योंकि मेरा जो स्कोप है, ठीक है, मैं डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, फिर वो सर मुझे करना है तो फिर डीबीए को रीच आउट करना पड़ेगा कि भाई तू पुराने डेट का कुछ बैकअप है तो दे दे। ठीक है, तो उसका एक ऐसा ही लिखा जाता है, बिगिन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन इसके बीच में रहेगा, तभी जाके आप बिगिन रोल बैक, बिगिन ट्रांजैक्शन, उसके बाद एंड ट्रांजैक्शन। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तभी जाके आप रोल बैक कर पाओगे। ऐसे में डिलीट अभी ये पर्टिकुलर टेबल से ऐसे ही आप डिलीट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, आप फिर चाहूंगा अनडू करने के लिए, नहीं होगा। देन अगर डेटाबेस जो डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर बैकअप रखा होगा तभी पॉसिबल होगा। डेटा चेंज है, कैलकुलेशन गलती हो, कुछ आप गलत किए हो, तभी वो फिक्स कर सकते हो। बट अगर कुछ आप पूरा डिलीट कर रहे हो, आपके हाथ में नहीं है, तो फिर डीबीए वाला ही उसको रिकवर कर सकता है। फिर वो, दैट इज नॉट इजी प्रोसेस। वो फिर डंडा पड़ेगा तभी, मतलब आपको एस्केलेशन होगा, मैनेजर के पास जाएगा, आपको दो गाली सुनाएगा, तभी जाके हो पाएगा। ठीक है, तो जनरली कमिट रोल बैक ये सब ना आपके ओके पास नहीं रहेगा, ड्रॉप कुछ कुछ कमांड का एक्सेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रोडक्शन, मतलब जो ओरिजिनल टेबल है उसको डिलीट करने का भी एक्सेस मोस्टली नहीं रहता है, ड्रॉप का भी नहीं रहेगा एक्सेस। क्योंकि एज ए डेटा एनालिस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करते हो, डेटा ऑलरेडी है, आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा को लेके ही काम करना पड़ेगा, डेटा को समराइज करना है। मोस्टली 99% ऑफ द टाइम यू हैव टू डील विद सिलेक्ट क्वेरीज। अगर कुछ गलती हो गया, देन आपके पास अगर वो स्कोप है, आपको मतलब वो, और मतलब क्या बोलते हैं, राइट्स दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको डीबीए को रीच आउट करना पड़ेगा, दैट इज थ्रू फॉर्मल ईमेल चेन। ऐसा बाईपास करके बोलोगे कि भाई कर दे मेरा काम, वो वैसे नहीं करने वाला वो। ठीक है, जी सर। अगर आपको, आपने जो बोला February 26, मैं पुराने इसमें ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आप प्रोसेस समझो, वहां पे जाके वैसे ही कर देना। February 26 है, राइट क्लिक, ठीक है, टास्क, इंपोर्ट डेटा, डाटा अपलोड के लिए, नेक्स्ट। अच्छा, सबको दिख रहा है राइट? एक मिनट, फिर से बताता हूँ। राइट क्लिक करो, टास्क, इंपोर्ट डेटा, ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, मैं एक्सेल से डेटा लेके आ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ब्राउज करो, March 24, यहाँ पे एक किचन करके एक फाइल है, किचन, ओपन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो हैज कॉलम नेम्स, जनरली मेरा पहला रो कॉलम नेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जब सिलेक्ट कर रहे हो, वन ऑप्शन बिफोर द लास्ट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, वन ऑफ नेटिव क्लाइंट से पहला वाला ऑप्शन, पिछला वाला ऑप्शन ये। ठीक है, डेटाबेस सर्वर का नाम है टैलेंटल। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है February 2026। यहाँ पे भी मैं यहाँ से राइट क्लिक करके किया था, सो डेटाबेस,
नेक्स्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, उसके बाद क्लोज। अभी हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश यहाँ पे करो, रिफ्रेश रिफ्रेश, टेबल में जाओ, यहाँ पे आ गया है राइट, किचन। इसका एक डॉलर ऐड होके आ जाता है, राइट क्लिक करो, रीनेम करके वो डॉलर को हटा सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किचन। ओके, अगर मैं काउंट स्टार करूं, काउंट क्या करता है, रिकॉर्ड्स को काउंट करता है राइट। 34,999 रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये ऐसे इंपोर्ट हो गए। तो आपका जो SSMS है, उसका नेविगेशन थोड़ा चेंज रहेगा, बट प्रोसीजर सेम। हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, I'll share all this in your group. Okay, so we are done with DDL. नेक्स्ट सेशन में DML सीखेंगे, DML और कंस्ट्रेंट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एवरीवन अंडरस्टूड? आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। ओके, ऑल राइट, चलो गाइस, बाय बाय। बाय सर। Well,